The delay. I'm so sorry. It was a technical glitch. So welcome to Creative and Creativity in association with Kashmir as it is, an only platform where you can just help to know about Kashmir and related things, the rituals and anything. If you are a good writer, you can write newsletter for the newsletter also. We welcome that also. Anyways, I'm going to start my video right now. And today we are going to do sketching. Okay, let me start with what all we have to get for the sketching. This is the basic material, but wherever I'll tell you not to get the things, that is not very important. Okay, I think, let me just confirm with the class starting. Those who have confirmed, are they there? Let me check. Yeah. 2 minute wait करते हैं मैं because so many people had confirmed their joining. Let me wait for few minutes, just 2 minutes, and then we'll get back. Okay. Your microphone is unmuted. Really? Is कहाँ that पे? so? हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? Ritisha, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Okay, let's get started because बाद में जो भी join करेगा तो वो video देख सकता है. First of all, let me just get to the camera more. The basic supplies which I'm going to talk about for the sketching, you need to have a sketchbook, okay? And if you don't have sketchbook, you can buy this cartridge sheet मिलता है बाजार में. उसमें थोड़े से हल्के से grains वगैरह होते हैं, बिल्कुल थोड़ा rough type होता है, and it is cheaper than the usual book, okay? This is the sketch pad which I'm using right now, but आपके यहाँ पे Camlin वालों का that is the best, जो brown color में उसका paper होता है ना. This is my sketchbook. I will just show you. I hope this is sketchbook and 125 GSM. It doesn't matter अगर आप basic sketching कर रहे हो तो it doesn't matter GSM कितना होना चाहिए, ठीक है? Sketching आप अगर free hand करना चाहते हो, you can do on the जो फोटोकॉपी पेपर होता है उसके ऊपर भी कर सकते हो बेसिक स्केचिंग. ओशिन, तुम्हें नींद आ रही है? उठो, जागो. तो उसके बाद ये आपका स्केच पैड हो गया.
उसके बाद आपके सप्लाईज में आपके पास पेंसिल्स होने चाहिए. दिस इज 4B, दिस इज 6B. आपको सिर्फ ये ही पेंसिल लाने हैं, बट आप कोई भी कंपनी का लेके आ सकते हो. HB and 2HB. okay, HB, 2HB, 6B, 4B and 8B, right? These are the pencils. आपके नटराज के भी मिल सकते हैं and you can get जो केमलिन के भी हैं, बट एक एक करके इनका सेट लेके आओ जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिनका लेड आप अच्छा लगता है या शार्पन करके वो टूटता नहीं है, then you can stick to that particular brand. So I'm not promoting any brand over here, so anything can do with the pencils. Okay, these are the basic supplies for pencils. Then we have rubbers. ये वाला एक रबर होता है, एक दूसरा गम रबर होता है which is transparent. That is the perfect one. I don't have that, but this is usual which we use mostly. And अगर आपको realistic work करना है तो ये एक और रबर होता है which I have not used till now because अभी मैंने realistic work शुरू नहीं किया है. ये आप जिस तरीके से भी mold करोगे ना, and you can make it make the shape of that particular thing, like this is a square one, no? So अगर आपको थोड़ा पतला करना है इसको, you can make a square and then you can do the sketching, you know, kind of, you know, hyper realistic work जो होता है उसको मिटाने का काम करता है, right? So this is another kind of rubber which most of the professional use, but अभी मैंने इस पे काम नहीं किया. hyper realistic जो भी है, this is one kind of just a minute. These are sharpeners. Okay, we need sharpeners to sharpen our things, like sharpen our pencils. And these are the leads for the pencil, which is called mechanical pencil. Mechanical pencil होता है जो professionals use करते हैं, like architects, interior designers, or these mechanical engineering में use होता है जब आप drafting करते हो. You cannot sketch with this pencil, but हाँ, अगर आप light, you know how to draw, you can use for light sketching and all. Okay, this is the one, but it's not used. Mostly इसको avoid करिए बेसिक जब आप सीख रहे हो तो. उसके बाद ये उसका लेड्स आता है, इसमें छोटे छोटे लेड्स होते हैं. यू कैन पुट इट इन द, बट इसमें याद रखिएगा ये 0.5 है, ये 0.7 है. इट विल नॉट गो हेयर इन दिस, सो यू हैव टू सी 0.5 के साथ 0.5 का ही लेड जाएगा. मेरे पास काफी पेंसिल्स हैं, सो आई हैड दिस, आई वांटेड टू शो यू. नेक्स्ट इज योर पेंसिल शार्प कैसे करना है. We have sharpener over here and we need sandpaper also. Sandpaper किसके ग्रिड का होना चाहिए. ग्रिड में मीन्स जितना उसका एब्रेशन होगा, मतलब अगर जो भी ग्रैन्यूल्स हैं. सैंडपेपर पता है ना, जब हम ये वॉल पे कलर करते हैं एंड उसको साफ करने के लिए हम सैंडिंग करते हैं, राइट. दैट सैंडपेपर यू नीड टू यूज. दैट इज मोस्टली 80 to 60 ग्रिड का होता है, या 40 to 60 ग्रिड का होता है जो मीडियम होता है, विच यू कैन यूज फॉर सैंडिंग द पेंसिल्स. वो क्योंकि इससे क्या होता है, यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर थिंग. शार्पन करना है उससे कर सकते हो आप. लाइक I'm quickly going through this because this is my sandpaper. If I want to use, मैं इसको शार्प करके एंड इसमें एक पॉइंटेड निब बनाऊंगी. बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वर्क कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, अभी मैंने इसमें से कर लिया एंड इट बिकेम टू शार्प फॉर मी. कैन यू सी दैट? I just put my camera down a little bit. बहुत शार्प बना. And one more thing is there.
you can have charcoal pencils, but जब आपको hyper realistic work करना है, you can use charcoal pencils for that. And charcoal pencils के लिए एक particular varnish आती है, you can use that varnish. ये oil and acrylic का है, but उस पे charcoal लिखा होता है, you can use that particular spray, right, to prevent your job. Like अगर मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, work किया है, तो मैं उसको स्प्रे भी कर सकती हूँ एंड फ्रेम कर सकती हूँ. सेकेंडली आई कैन यूज, लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट. आई कैन, या इस तरीके के पेपर आते हैं. दिस इज ट्रेसिंग पेपर, बट एक बटर पेपर भी होता है. आप देखोगे आपके सूट्स वगैरह में एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर आता है जो कि आप यूज कर सकते हो. यू कैन सेव दोज और यू कैन बाय देम और यू कैन बाय द ट्रेसिंग पेपर. और उसके बाद आप ये सब इसको कट करके, मैं आपको दिखाई देती हूँ, एंड यू कैन प्रिवेंट योर, जैसे आपने यहाँ पे कुछ बनाया है एंड इसको यहाँ साइड पे सेलो टेप करके you can prevent your work and ये ट्रांसफर दूसरे पेज पे नहीं होगा, right? So you can work on this page as well as previous पेज पे भी कर सकते हो कि इस पे ये दूसरे पेज पे ट्रांसफर नहीं होगा. Okay, this is tracing. Just remember that tracing or butter paper you can use, right? And yeah, अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है, आप फाइलर भी यूज कर सकते हो. यू कैन, अगर आपके पास फाइलर थोड़ा हार्ड वाला है, फाइलर भी यूज कर सकते हो. इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू शुड हैव एवरीथिंग. और जितना भी है आपके पास उसको यूटिलाइज करिए, नया चीज लाने की जरूरत नहीं है. ये जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ आपको. वट एवर आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. इट इज नॉट दैट यू हैव टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट. बेसिक चीज है 2D, 2B, 4B, 6B, 8B, ये एक सेट लेके आइए. एंड यू नीड अ रबर एट द इनिशियल स्टेज. आपको एक रबर की जरूरत है और एक शार्पनर की जरूरत है. दैट्स इट. दैट्स द बेसिक थिंग यू शुड हैव. ओके, क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके ओके. ये एक और टाइप का रबर है जो पेंसिल में आता है, जो हाइपर रियलिस्टिक वर्क में करते हैं. एंड यू कैन मेक, आई विल शो यू व्हेन आई विल बी डूइंग दिस, तो मैं बता सकती हूँ आपको. ये एक दिस इज अ वेरी, बहुत इसको ध्यान से खोलना पड़ता है. दिस इज अ ब्लेड फॉर योर पेंसिल्स. जब हम ये शार्पन करते हैं पेंसिल्स को, it has to be like, अगर आप शार्पन करते हो, there is a style for that also. यहाँ से लेके आपने इसको खींचना है आराम से. आपने देखा होगा मोस्टली जो डिजाइनर वगैरह, उनकी लेड जो होती है बहुत लंबी होती है, राइट? सो यू कैन, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. सो यू कैन, अगर आपके पास ब्लेड भी है, पुराने जमाने की जो ब्लेड्स होते थे, टोपैज वगैरह, वो भी हम यूज करते थे बचपन में. अगर आपके पास वो है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. फाइन. लेट मी टेल यू अबाउट अनदर टाइप ऑफ कटर. दीज आर 2 कटर्स, बट इसका यूज क्या है, ये भी हम पेंसिल शार्पन करने के लिए यूज करते हैं. बट जब हमें इसको तोड़ना होता तो हम कैसे तोड़ते हैं? या तो बेसिकली पता नहीं होता है कि कैसे तोड़ना है. यू नो, ये चीज जो पीछे वाली चीज होती है, यू हैव टू पुट इट हेयर एंड देन प्रेस द, यहाँ पे एक ग्रूव बना होता है, सॉरी, यहाँ पे एक ग्रूव बना होता है. यू कैन पुट इट, इंसर्ट इट हेयर एंड देन जस्ट प्रेस इट. देन एक स्ट्रैंड आपका टूट जाता है. लाइक आई विल शो यू हेयर. ये इसका पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बड़ा है. I don't think it will work. Yeah. See, this is one thing. And then you have to just paper में roll करके इसको throw करना है. ऐसे ही throw मत कर देना. It is sharp. So next जो आपका आएगा,
वो शार्प रहेगा. ठीक है. These are the basic things you should know about how to use what. So let me get started with the work which I will be doing with you. I'll take 4B and I'll take just a minute. HB pencil ले लेती हूँ मैं. I have 2B over here. 6B. Okay, I just forgot to tell you about the pencils. So see, there are different types of pencils. जहाँ पे ये 4H है. That means H means H बोलते हो ना आप लोग भी. H phonetics में. H means for this hardness. जितना भी नंबर ऊपर जाएगा वो hard pencil होता है. Okay, and ये जो B's होते हैं ये ब्लैक होते हैं और थोड़े सॉफ्ट होते हैं, right? So we'll get started with, I'll just use 4B, right? 4 because I don't want to use the firm lines over here. थोड़ा नजदीक लेके आती हूँ so that you can be seeing what is going on. हाँ. Okay. Starting में जब हम work करते हैं, you don't have to just make a circle like this. ये commit नहीं करना आपने. ऐसे circle नहीं बनाना है. So how you need to make the circle for sketching? First broken lines में करो. जब आपका shape सही आ जाए तब उसको firm करो. ठीक है. इससे आपकी shape भी prominent रहेगी और पता चलेगा आपको ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है. अगर आप committed रहोगे ना ये कभी गलत भी हो सकता है. But in this case when you are doing broken lines और ये firm नहीं है, उसके बाद when it's done, जो कि ये perfect लग रहा है मुझे, तो extra lines आप हटा सकते हो. ठीक है. साथ साथ में भी आप बना सकते हो इसको. and try करो. ये broken lines जो messy lines होनी चाहिए वही आपका best drawing होता है. And don't think about कि वो perfect होना चाहिए. No need to get into perfection mode. You don't have to see that. You just have to make it like broken में बनाओ और उसको perfect करने की कोशिश करो. जब आपको लगे ये perfect हो रहा है तब जाके इसको बाकी extra lines उसको हटा देना. Even with square also. Don't get into the perfection mode. Just make the broken lines. इसको try करो. इसको ऐसे ही रहने दो. No need to get into the perfection mode, which I already said. इसको जैसे भी है broken line, messy lines, वो आपने try करना है. Fine. अगर आपका perfect square नहीं आ रहा है या circle नहीं आ रहे हैं, don't worry about that. It will come with the time.
इतना हो गया, तो इसको रिफाइन करने की कोशिश करो आप। जैसे मैं इसको रिफाइन करने की, मेरा लाइन टेढ़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको रिफाइन। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट स्केचिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। जस्ट ट्राई करिए, एंड एवरी डे ऑफ 15 मिनट्स और 10 मिनट्स यू जस्ट, क्या भी जो भी आपके सामने है, आपके पास, आपके सामने एक पेंसिल है उसको ड्रॉ करिए, रबर है उसको ड्रॉ करिए, ग्लास है आपके पास वो ड्रॉ करिए, आपका वॉच है वो ड्रॉ करिए। सो यू डोंट हैव टू परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं, ऐसी ब्रोकन लाइंस में उसको बनाने की कोशिश करें। अब मेरा ये जब सर्कल हो गया, तो मैं इसको एक्स्ट्रा लाइंस निकाल लूंगी। मैंने इसीलिए ये 4B पेंसिल लिया ताकि मुझे ज्यादा प्रेशर ना डालना पड़े अपने पेपर पे, क्योंकि जब आप प्रेशर डालते हो तो ये ग्रूव बन जाता है, विच इज वेरी बैड फॉर स्केचिंग एंड इट इज नॉट गुड। you don't have to put pressure on your sketch pad or book while doing the sketching. अब मैं यहाँ पे स्केचिंग कर रही हूँ, ये देखिए ब्लेंडिंग कितना इजीली हो जाता है। ट्राई टू यूज 4B and 2B। अगर आपके पास HB है वो भी यूज करिए एट द इनिशियल स्टेज, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अभी आपने सप्लाईज नहीं लाए होंगे, एक एक पेंसिल काफी है। डोंट गेट इनटू दैट मोड ऑफ गेटिंग ऑल द थिंग्स एंड देन फिर करोगे कुछ नहीं। So एक एक पेंसिल, रबर, बेसिक, दैट्स इट, एंड देन जस्ट स्मूदन इट। बिल्कुल हल्के हल्के से करना। ओके, अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम स्मजिंग पेन हाथ से करते थे, उंगली से रगड़ते थे, बट नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बिकॉज उंगली से करने से क्या होता है, एक लाइन जैसी बन जाती है। इफ वी आर टेकिंग अ टिश्यू पेपर and there are particular things which you can use, even आप घर में भी इसको, इस टिश्यू पेपर को जो है इसको कंप्रेस कर करके you can make a stump, that is smudging stump। ये ऐसे करके, this is smudging stump, वो बना सकते हो आप टिश्यू पेपर का। अदरवाइज मार्केट में आपको ये भी अवेलेबल होते हैं, these are stumps। आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, these are stumps which you can use for Yes, ma'am. या ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के आते हैं, बट आप घर में भी बना सकते हो, नो नीड टू इन्वेस्ट ऑन दीज। ठीक, ये जैसे मैंने इसको अब इसमें कर रही हूँ, मैं स्मजिंग कर रही हूँ। आई विल नॉट यूज इट बिकॉज आपके पास नहीं होगा, तो मैं आई विल यूज माई टिश्यू कि आपको भी पता चले कैसे करना है। ठीक है, सो दैट it will be even। फाइन। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे और डार्क होना चाहिए, इसको और आहिस्ता आहिस्ता, बट इसको प्रेशर नहीं डालना है, हवा में करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके। बुक पे आपका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए।
मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया है वाइट, दैट मीन्स माई लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम हेयर। सो लाइट का बहुत बहुत ध्यान रखिए, मैं लाइट भी अभी बताऊंगी, बट अभी के लिए सो आई विल कीप दिस पोर्शन ओपन like without making any marks on that. अगर मुझे ज्यादा भी लगा मैं इसको भी रब कर सकती हूँ। ओके, आई कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो मैंने रबर बताया था वो भी यूज कर सकती हूँ, इनफैक्ट ये भी, बट ये बहुत मेसी होते हैं, नॉट द अदर वन। ठीक है, हाथ से साफ नहीं करना है, जस्ट टिश्यू से ही लेके इसको हटा देना। जब आप ये स्क्वायर बना रहे हो तो आपका लाइंस इधर से इधर जाना चाहिए, लाइक स्विंग, ये स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये then it will give you an illusion of sphere. This is 4B. I'll use 6B now. To get the darker at the bottom of the sphere. बिल्कुल हल्के हाथ से काम करना आपने. Don't pressurize yourself. Is it fine? Okay. Now I'll get back to the next step. Like अगर हमने ट्री बनाना है, उसको भी आपने ऐसे डिफाइन नहीं करना है, सीधे अपने ट्री बना लिया हो गया, ऐसे नहीं करना आपने. यू हैव टू जस्ट गिव इट अ ब्रोकन लाइंस में, इसको पहले शेप लो, किधर से कैसे आएगा. जरूरी नहीं है कि कैसा वाला. और यहाँ पे एक्चुअली जगह कम होगी. आई स्टार्ट फ्रॉम डाउन. ओके, फर्म लाइंस में काम नहीं करना आपने, जस्ट ब्रोकन मेसी हो उसको शेप दो, उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्राज हैं देन यू स्टार्ट रबिंग देम. ओके, डोंट मेक योर ट्रीज लाइक दिस. ब्रोकन में ही हर चीज आनी चाहिए, स्केचिंग उससे इम्प्रूव होती है. Okay. नेक्स्ट स्टेप मैं बताने जा रही हूँ, जस्ट सी टू इट. ओके,
इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप कोई भी शेप बनाते हैं, सिलेंडर, सर्कल, स्फेयर, शेडिंग कैसे आती है? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज देयर। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट आपका जहाँ से सन की पोजिशनिंग होगी, जैसे ट्रीज पे सन की पोजिशनिंग होती है, एंड देन उसका शेड ग्राउंड पे गिरता है, अब वो शेड कहलाता है। वहां पे दूसरी तरफ या एक तरफ जो ट्री होता है वो ग्लो करता है और दूसरी तरफ से थोड़ा डार्क होता है। सो यू नीड टू स्टडी द लाइट एंड शेडो, लाइक नाउ जस्ट सी टू इट। ओके, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब आपके पास अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, एक कैंडल लेके आप स्फेयर बॉल या अपने घर में आपके पास क्रिकेट बॉल वगैरह होगा, वो सामने रख के लाइट में ये कमरे में थोड़ा सा डार्क करके थोड़ा डिम रखें, एंड देन जस्ट टेक दैट कैंडल एंड सी हाउ इट रिएक्ट्स। अगर सोर्स ऑफ लाइट ऊपर से आ रही है, यहाँ पे कैंडल रखा है मैंने इतना बड़ा, तो ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, तो शैडो किस तरफ आएगा? शैडो इस तरफ आएगा। ठीक है, सो वी हैव टू क्रिएट जस्ट एन इल्यूजन। ये ऐसे करके आता है, इतने में आपका ये इट विल बी डार्क, सॉरी, ये डार्क हो जाएगा, एंड देन स्मज इट आउट लिटिल बिट, एंड यू आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन। यहाँ पे डार्क हो जाएगा ये। अंडरस्टैंड किया? इज इट क्लियर? ओके, अनदर फिगर। मैं अपना कैमरा भी मूव करती जाऊंगी। ओके, अनदर फिगर इज दिस। मैं ब्रोकन लाइंस में ही सर्कल बना रही हूँ till the shape gets finalized, and then extra lines I will just rub off. And then source of light मेरा अगर 2 है या ऊपर से आ रहा है, लाइक यहाँ से मेरा सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, तो सोर्स ऑफ लाइट की वजह से मेरा यहाँ पे डार्क हो जाएगा ये वाला एरिया। एंड देन स्मज इट। ऊपर तक लेके जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड देन स्मज इट। नीचे वाला एरिया जो है बिल्कुल डार्क आएगा। Try to make it little slowly you can just darken the area, and then you are done. Okay, now इसका shadow कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। Yeah. ठीक है, सो सोर्स ऑफ लाइट अगर ऊपर से आएगा तो यहाँ पे ये एरिया जो होगा बिल्कुल लाइट होगा, एंड देन
यहाँ पे उसका शेडो गिरेगा तो यहाँ पे आएगा। आप अपने मोबाइल की लाइट से भी ट्राई कर सकते हो, एक बॉल रख सकते हो, जस्ट टेक अ बॉल एंड बिहाइंड दैट आप में देखिए कहाँ कहाँ शेड आता है, then you can learn. This is how you can start sketching. If your book is not you have not worked on sketching, this is how you have to start sketching. Like कोई भी आपके पास स्पून है, बॉल है, ग्लास है, टेक एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड एनी ऑफ द थिंग्स जो भी हम यूज करते हैं, और उसको अपने साइड पे रख के उसमें लाइट का सोर्स या तो कैंडल रखिए, नहीं तो आप यूज कर सकते हैं अपने फोन, मोबाइल फोन का लाइट, और उस पे देखिए कहाँ कहाँ पे लाइट जा रहा है और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, दिस इज अबाउट इट। अब तीसरा वाला मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। If the source of light is from two sides, again I'm making a messy circle so that it becomes a habit that you don't have to commit making circle, and then rub off the extras and create your circle. Fine. And now the source of light is from here and here. So what will we do? We are getting the shadow over here. ये बीच का हिस्सा जो है वहां पे थोड़ा shadow आ जाएगा and ये ऊपर की तरफ आ जाएगा. Okay, try to make like that. And इसका जो shadow है यहाँ पे गिरेगा, और इसका जो shadow है यहाँ पे गिरेगा. So darken it slowly, slowly. ये अभी ये वर्कशॉप चल रहा है, so time is the constraint. Otherwise you need at least half an hour to do this smudging. आराम आराम से करो, तसल्ली से बैठ के, and it is just a meditative process. You know that it will help you. First of all, it will help you your skills, to enhance your skills. Or if you're making your future in like textile designing, fashion designing, interior designing, architecture, mechanical designing, aircraft designing, AutoCAD designing, आपका किसी में भी अगर आप कोई भी एरिया में जाते हैं, ड्राइंग इज मस्ट फॉर एवरीवन. ओके, एंड ड्राइंग से क्या होता है, यू कैन जस्ट मेक योर प्लान्स कि हाँ, अगर आपको आपके घर का रास्ता किसी ने पूछा, यू कैन जस्ट मेक अ स्मॉल स्केच. हाँ, मैं इस गली में रहती हूँ, ये तीसरा डोर मेरा है. देन इट बिकम्स it will help you in sketching also. It will enhance your creativity. Like आपको फिर आइडिया होने लगेगा, हाँ मैं किस डायरेक्शन में रह रही हूँ, ईस्ट में रह रही हूँ, वेस्ट में रह रही हूँ, मैं कहाँ से मेरा स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ पे है, फिर मैं कहाँ से किसी को रास्ता दिखाना है तो कहाँ पे मैंने स्टॉप करना है. ऐसे करके जस्ट ट्राई टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपका फर्स्ट लेसन है कि आपने ये स्क्वेयर्स बनाने हैं. That is the basic of sketching, a must to do for all. And practice every day for 5-10 minutes. It will help you. अभी next में क्यूब पे जाती हूँ. I'll make a cube. Now अगर मैं ये स्क्वायर तो हो गया, and make a cube. What is a cube? Like पहले अगर हम ये स्क्वायर बनाती हूँ तो इसका प्रोजेक्शंस लेके this becomes a cube. Like, ठीक है, और एक्स्ट्रा मेसी लाइंस में हटा सकती हूँ. Don't hesitate to use eraser at the first like few classes. After that you try to avoid it. जब आपका firmness आएगा क्लास में, then try to avoid it.
ओके नाउ अभी हमने क्यूब बनाया है तो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आएगा, तो मेरा ये पोर्शन बहुत डार्क होगा, ये वाला। जस्ट पुट माय टाइम। एंड दिस इज ऑल्सो डार्क, क्योंकि ये बैक साइड आ रहा है तो बैक में बहुत। And don't think that you have to get into the perfection mode. It is you have only to get into this training mode. आप ट्रेनिंग ले रहे हो अभी, not just that you are you want to be perfect. No, it's not that. You don't have to be perfect in anything. Just messy lines over here will do the job. And then if you are done, just a little bit of erasing will help to create the drawing perfect. And अभी initially आप perfection की तरफ मत जाओ, मैं हमेशा बोल रही हूँ, आगे भी बोलती रहूंगी, don't get into the perfection mode. That's the wrong concept. If you are learning, you have to be a trainer into the training mode, right? So this is how we are going to make the cubes, right? Now, if you compare these things with some nature, like ये tree trunk का भी ऐसे ही बनता है, like मैंने यहाँ पे tree trunk बताया, ये भी cylinder mode में आएगा, इसका भी लाइट यहाँ से आएगा तो कहाँ पे डार्क होगा, कहाँ पे लाइट होगा। अगर यहाँ से लाइट आ रहा है, कैन यू सी दैट? ओके, यहाँ से लाइट आ रहा है तो यहाँ पे डार्क होगा, this portion will get darker and this portion will be light. So light shadow is very important. Try practicing it every day. So यहाँ पे sketching and ये हो गया आपका? ओके नाउ फर्स्ट ऑफ यहाँ पे मैंने आपको एक चीज मैं तो वैसे ही करती हूँ, बट यू नो व्हेन यू आर यूजिंग द पेंसिल यू हैव टू पुट योर पेंसिल ओवर हियर। जब आप स्केचिंग कर रहे हो तो ये ऐसे भी कर सकते, सॉरी you have to hold the pencil over here and then loosely sketch करना है, शेडिंग करना है, सॉरी यहाँ पे पकड़ के जो है फर्मनेस आती है, नहीं पकड़ना है ऐसे। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ होल्डिंग द पेंसिल। डू यू गेट मी ऑल? Shirin? Yes, ma'am. Yeah, Oshin, are you Yes. here with me? Yes, ma'am. Okay. Ridisha? Arshia? Yes, ma'am. Yeah. Yes. पेंसिल को यहाँ पे नहीं पकड़ना है, that's the basic rule. Just hold your pencil here और उसको स्मजिंग करते रहो, जो मैंने स्क्वायर वाला बताया, स्क्वायर एंड स्क्वायर वाला ऐसे करते रहो। एंड एक और चीज होता है, ऐसे लोग ऐसे भी पकड़ते हैं पेंसिल। So if you are comfortable using like this, you can do like this. अब इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेडियंट्स जो होते हैं ना, आपका थिकनेस ऑफ लाइन बहुत लंबा आ जाता है। You see? I'll show you. It's not visible out here. ये देख, जिस तरीके से मैंने पेंसिल पकड़ा था, इसका थिकनेस बहुत आया। That means मैं अपना ये जो एरिया है उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। ये देखो, और कोई भी ग्रूव नहीं आ रहा है। मैं दूर से पकड़ रही हूँ ऐसे या ऐसे।
So 3 ways to hold your pencil. This one, first is here, second is here like this, and third is like this, but far away, not here. Just be careful with your hands. By smudging, you can just make the area very dirty. For that, you need a butter paper. जब भी आपका काम खत्म हो गया, हाथ उधर रख दिए, ठीक है, ताकि आपका एरिया जो आपने काम किया हुआ है उसको फर्क ना पड़े कुछ. एंड अगर मैं हाथ इसके ऊपर डालती रहूंगी, मेरा सारा हाथ पे लग जाएगा यहाँ पे. So I have to use the butter paper over here on that, and then again मैं दूसरे वर्क कर सकती हूँ. Are you done with this? इतना आपने समझ लिया? कोई क्वेश्चंस हैं? Okay. So we'll move to the next lesson of the day. Okay. I'll take another sheet. Like अभी मैं अगर मुझे कोई पेंटिंग बनाना है पेंसिल से, so I'm going to first draw the area. अब मैंने बेसिक ड्राइंग तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल इससे किया है. तो सो गेट इनटू द वैल्यूज ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. लाइक मैं ये पहाड़ बना रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट आएगा, होराइजन लाइन, एंड मैं यहाँ पे जो मेरे नजदीक होगा वहां पे मैं थोड़ा सा डार्क करूंगी, बट जो मैं पीछे माउंटेन्स वगैरह आएंगे उनको थोड़ा लाइट लाइट. आई हैव टू यूज द ग्रेडियंट्स. लाइक कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डार्क है. जो दूर की चीज है वो लाइट आएगी, जो पास की चीज है वो थोड़ा डार्क आएगा. उसको ग्रेडियंट्स में लेके आना है आपने. ये देखो मैं ये एक भी कलर. अब अगर ग्रेडियंट्स आप एक पेंसिल से नहीं ला पा रहे हो, तो देन यूज 2B and 4B for other things. So like this. ये मैं बेसिक बता रही हूँ आपको. Again from tomorrow I'll be sending you drawings. Please work on that so that you can rectify your mistakes yourself. कभी कोई पूछना होगा, you can ask in the group or you can write it under the video. So we'll get back to you on that. यहाँ पे नदी जैसी क्रिएट कर रही हूँ. Some pebbles out here. So you have to go according to the gradient. आपने कोई सीनरी वगैरह देखी हो, सामने होगी, तो उसके हिसाब से आप जहाँ पे आपको डार्क लग रहा है वहाँ पे डार्क करो एंड जस्ट प्ले अराउंड. इनिशियली क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम यूज करें पेंसिल. पेंसिल पकड़ना ही बहुत बड़ी बात है.
अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, कोई ड्रॉ करने के लिए आप तंग आ चुके हैं, देन यू जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस, फिस्ट ऐसे बना के इसको ड्राइंग करो, ऐसे रखो या ऐसे पकड़ो. You have to make the movements with your hands and just draw them. अब इसमें क्या है, ये मेरी उंगली है, इसमें ये सिलेंडर शेप में आ रहा है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल आ रहा है, राइट. ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल और यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड रेक्टेंगल, बट इट्स सिलेंड्रिकल शेप में. अब अगर मैं यही बनाने लगूंगी तो आई हैव टू डू लाइक दिस. अगर मैं ये बनाने लगूं तो आई कैन गो विद दिस 1 2 and 3 like this. ये मैं फर्स्ट वाला रेक्टेंगल बना रही हूँ, राउंड में हो गया, एंड देन सेकेंड रेक्टेंगल हो गया, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में आएगा. और अभी ये पतली उंगली बन गई है मेरी मोटी. डोंट गेट इनटू दैट. ओके, सो बेसिक इज हाउ यू हैव टू लर्न टू ड्रॉ. सो 3 रेक्टेंगल्स बना लिए तो उंगली बन गई. सो लाइक दैट. अब मैं इधर वाला, अब मेरा ये वाला उंगली है तो ये कैसे बनेगा, तो ये फर्स्ट उंगली, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल एंड थर्ड रेक्टेंगल. एंड इसी को यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल एंड तीसरा रेक्टेंगल, और इसको थोड़ा सा मैं, अगर आपके शेप सही नहीं आ रहे हैं, दैट डजंट मीन यू डोंट नो हाउ टू मेक. ये स्लोली स्लोली करके आता है, एंड पहले ही आप परफेक्शन मोड में जाओगे, यू विल गेट इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड. नॉट टू फील दैट, just have to work on daily, you have to work on, you will see yourself how you are going to progress. दिखता है? हाँ. सो अपने हैंड की मूवमेंट्स किसी भी तरीके से, बेस्ट इज यूजिंग योर हैंड्स फॉर द स्केचिंग पर्पस. ये वर्कशॉप सिर्फ सिखाने के लिए, बाकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे. एंड देन जस्ट शेयर योर वर्क so that we can see how much progress you have done, or what you have done, and where you are wrong we can give you suggestions on that, and I'll send you work according to your drawings. अभी हमें स्केचिंग में अगर चेयर बनानी है तो मैं पहले, अगर मैं देखूं तो चेयर अगर मैंने इतना बनाना है, पहले मैं नीचे वाला, नीचे तो होता नहीं है, नीचे वाला भी बनाऊंगी, इसके साथ में ऊपर भी बनाऊंगी. टेकिंग द प्रोजेक्शंस, ये मैं प्रोजेक्शंस ले रही हूँ यहाँ पे, और ये मैं एक और रेक्टेंगल बना, सॉरी स्क्वायर बना रही हूँ. ये मेरा, आप समझो कि क्यूब बन गया. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी लेग्स डाल दी. रेस्ट ऑफ द लाइंस यू कैन रिमूव. ओके, ये बन गया लेग्स, एंड इसमें मैंने थिकनेस दे दी, चेयर बना, and then you can make the headrest. So simplify things to make your drawings good, and work on it.
अभी रिसेंटली मैंने आपको क्लास में नोट्स भी भेजे थे फॉर द टाइप्स ऑफ लाइंस. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. Okay, let me do it here. Okay. ये जैसे है, ये स्ट्रेट लाइंस में आता है. यू नो अबाउट दिस इज द बेसिक. ये स्केचिंग में यूज होता है और इनफैक्ट हर किसी चीज में. एंड देन यू हैव टू गो लाइक दिस. पैरेलल लाइंस बनाओ. दिस इज अ होमवर्क, 5 minutes वर्क. लाइक 1 page ऑफ दिस यू हैव टू डू डेली. इसमें क्या होता है, जब आप पैरेलल लाइंस बनाओगे तो परफेक्शन आती है. ठीक है. ये मैंने आपको एक स्लाइड भी भेजी थी. अब यही दूसरी चीज हमारा क्रॉस हैचिंग आएगा. पहले हैचिंग करते हैं. ये हैचिंग भी कहलाता है. जब हम लाइन ऐसे ऐसे डालते हैं, दिस इज हैचिंग. क्रॉस हैचिंग क्या होता है, इसी को क्रॉस करना. दिस इज क्रॉस हैचिंग. ये स्केचिंग में यूज होता है. अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया तो मैं क्रॉस हैचिंग से ही इसको फिल कर सकती हूँ. आई कैन गिव शेडिंग विद दिस ऑल्सो. देर आर नो सेट रूल्स कि हाँ स्ट्रेट लाइन ही बनाना है. सो क्रॉस हैचिंग भी आप कर सकते हो एंड हैचिंग भी कर सकते हो. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग स्केचिंग. या आपके पास अगर एक और स्टाइल है, आप ऐसे करके वेवी लाइंस बना सकते हो. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शेडिंग. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, एक और चीज बताती हूँ. इसमें सर्कल बनाया, इसमें आप स्क्रिबलिंग कर सकते हो ऐसे 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 ऐसे. दिस इज ऑल्सो अंदर सॉरी अनदर पार्ट ऑफ योर मेकिंग द शेडिंग. स्क्रिबलिंग को जितना छोटा, जितना डेंस होगा या जितना आपने बनाना उतना आप रख सकते हो. सॉरी, तो इसको स्क्रिबलिंग करके ये भी आप कर सकते हो. ठीक है, दिस इज स्क्रिबलिंग. Another way of doing your shading is pointillism. Pointillism क्या होता है? Just tapping, dots बनाने. इसको कई कई लोग डॉट आर्ट भी बोलते हैं. अगर आपने कैटल बनाई या ग्लास बनाया, उसको हम टैप कर करके शेडिंग करते हैं. दिस गिव्स यू, दिस इज कॉल्ड pointillism और डॉट पेंटिंग, नॉट डॉट पेंटिंग, डॉट sketching. So one form of कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. अभी मैं एक और ड्राइंग बनाती हूँ. And then,
Suppose I am making a cylinder out here. और इसमें मैंने हैचिंग करना है या शेडिंग करना है, तो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन मेरा डार्क रहेगा। ये मैं आई कैन यूज क्लस्टर। क्लस्टर हो गया जॉइंट लाइंस। अब मैं जॉइंट लाइन कैसे कर सकते हैं? ऐसे these are cluster lines. This is another form of shading. And if I have a wooden block or wooden glass, wooden cup वगैरह, आजकल artifacts बहुत होते हैं। अब मैंने greens दिखाने, you can use wood texture also. This sorry, wood का जैसे texture आता है वैसे भी आप shading कर सकते हो। No hard and fast rule for that. But कहाँ से करना है, कहाँ से light आ रही है, कितना prominent होगा light, अगर यहाँ से आ रही, then I will have to rub this part. Because मैंने सब जगह कर लिया, so this part will be, you know, अभी तक कुछ बनाया आपने? दिखाइए जरा, let me see what have you done. Wow, awesome. Oshin, but you have done a great job. Oh wow, Shirin, awesome. Thank you. Very nice. Superb. Excellent रिदिशा. Superb. इसने तो रिदिशा ने आंख भी बना ली। ये किसकी आंख है? बहुत अच्छा बनाया तीनों ने। Very beautiful. So this was basic about sketching. इसके बाद हमारे नेक्स्ट फेजेस आते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि पर्सपेक्टिव कैसे बनाना है, जैसे हाउस बनाना है तो कैसे बनाना है, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनी तो बनाऊंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, we can have next session about sketching or any other particular thing. Okay, so उसमें पहले आप इसको मास्टर करो, ये चीज को मास्टर करो, then only you can move forward. अभी ये बनाया, आज बनाया, उसके बाद 4-5 दिन छुट्टी करने मत बैठ जाना, आगे कर लेना, डेली 5-10 मिनट कर लेना, ठीक है? All 3 of you. Manisha, ma'am. Okay, ma'am. have you done this? Was this और हाँ, तो जो भी आप काम कर रहे हो ग्रुप में शेयर करो। इट डजेंट मैटर, आपको कोई वो घर की डरने की कोई बात नहीं है। ग्रुप में शेयर करो, दूसरों को भी आप मोटिवेट करो। गलत होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, सो यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ। you don't have to show any other person कि आप क्या है, कैसा है, कल गलत है, सही है, ठीक है, हम भी गलती करते हैं, so we learn from our mistakes. So share your work in the group, and I think we are done for today. You have done a great job. I really loved your work. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you, ma'am. so इस पे डेली वर्क करो। वाओ, आईफोन किसका है? याना का है कि दिव्या का? Oh, hi. How are you? Okay. So great job, Yana. Okay. So let's call it a day. आज इतना ही. And now we are going to meet in December. No, December is we are going to meet in January.
So happy new year to everyone. Enjoy and have fun and have a great new year ahead. So we'll meet in 2023 with something new, or we can continue with this. Is that fine? Yes, ma'am. Yeah, anything you want to ask or any questions related to drawing? इतना जो मैंने सिखाया या जो आपने was it clear? Was it crisp? Because I made Yes, ma'am. yeah, because I didn't want to waste time, so I just Ma'am? got into. Yes, please. Ma'am, I wanted to ask you a thing related to that dot sketching. Yeah, tell me. That is pointillism. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, as we did sketching, first it was denser and then it became lighter and lighter. And but we can't give this texture in the pointer art, No. pointer See, sketching. पॉइंटर स्केचिंग जब करना है ना आपने, उसके लिए अलग सा अपने एक पर्टिकुलर चीज ठहरो उसके लिए अपने अलग से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है. लाइक आपने पहले स्केच किया, केटल स्केच की, ठीक है, उसको आपने पॉइंट से ही स्केचिंग करना है. उसको उसके ऊपर ये वाली स्केचिंग नहीं चलेगा, ठीक है. उसमें आपने पॉइंट से ही, लाइक मैं अभी आपको दिखाती हूँ. जैसे मैंने ये एक ग्लास बनाया, लाइक ये एक, ठीक है, या रेक्टेंगल बनाया. मैंने इसको शेडिंग नहीं करना है. मेरा शेडिंग कहलाएगा जब मैं पॉइंट डाल के इसको शेडिंग करूंगी. यहाँ पे डेंस करूंगी और ये फिर लाइट सोर्स को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे डार्क करूंगी और फिर लाइट. उसको जितना भी डेंसर, मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल भेज दूंगी ग्रुप में. Okay, ma'am. इट विल बी वेरी इजी. जितने भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाए हैं वो इसके साथ क्लब नहीं करना है. ये एक अलग टेक्सचर सॉरी एक अलग शेडिंग का यूसेज है. ये अलग है. जैसे आप ग्लास बना रहे हो तो एक में ये दे दिया, कप बनाया तो ये बना लिया. सो एवरी प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट आप टेक्सचर बनाओ एंड मुझे दिखाओ. लाइक आपने क्या करना है, ग्लास 7 ग्लासेस बनाए ना आपने, एक में शेडिंग कर ग्रेडियंट से, ठीक है. पेंसिल ग्रेडियंट कैसा वाला मैं बताती हूँ. पेंसिल ग्रेडियंट ये वाला फर्स्ट, ग्लास ये वाला, ठीक है, सिंपल, ठीक है. सेकंड आपका आएगा क्रॉस हैचिंग, ठीक है. Okay. थर्ड वाला आएगा वेवी लाइंस. वही ग्लास सेम है मगर आपका शेडिंग का टेक्निक डिफरेंट हो जाएगा. और यहाँ पे पॉइंट वाला, ठीक है. आप इतना करो, उसके बाद मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगी एंड आई विल सेंड. जस्ट राइट इट इन द ग्रुप क्या चाहिए आपको. मैं उसके रिलेटेड आपको परफेक्ट वाले पिक्चर्स भेजा करूंगी so that you can practice. Okay, thank you, ma'am. Okay, welcome. So should we call it a day? Thank you so much everyone. Oshin Bhatt. I'll just put my camera over. Yeah. तो अभी मैं देख पा रही हूँ. Okay, Shirin, any questions? Ridisha, any questions? No, ma'am. No, everything is clear. Very good. Yes, ma'am. हाँ, तो अपने पेरेंट्स को तंग मत करना प्रोडक्ट्स लाने के लिए. ज्यादा प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गेट 2B, 4B, 6B और 8B. ये 4 पेंसिल्स होने चाहिए. वो जब खत्म हो जाए उसके बाद ही नया लॉट लेके आओ. हाँ, एक और चीज है, जब आपके पेंसिल्स इतने छोटे हो जाए ना, उनको फेंकना मत. आई एम कमिंग अप विद अ न्यू आर्ट, सो जस्ट प्रिजर्व देम. एक डब्बे में रखो. मेरे पास अभी बहुत सारे हो गए हैं. सो we will make something out of it which will be useful thing, not like
जैसे ये टूटे फूटे पेंसिल्स होते हैं ना, या वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग, सो जस्ट कीप, इवन आपके जो लाइक कलर पेंसिल्स जिनका अंदर से लेड बिल्कुल खराब होता है, विच इज रेडी टू थ्रो, जो भी ब्रांड के, कुछ ब्रांड्स के बहुत घटिया से पेंसिल होते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो इन अ न्यू आर्ट. सो आई विल बी कमिंग अप विद मे बी इन February or March, आई विल कम अप विद दिस. तब तक आपके पास पर्टिकुलर काफी सारा मटेरियल जमा होना चाहिए, और वॉट एवर सप्लाईज यू नीड, ओनली पेंसिल्स, दैट्स इट. सो दिस विल बी अ न्यू आर्ट, एंड इसको प्रिजर्व करें. और देखिए, अगर आपके अप्सरा पेंसिल्स ठीक नहीं चल रहे हैं, या मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, एक ब्रांड अगर ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरा ब्रांड आप यूज कर सकते हो, ठीक है. एंड ये सब लाने की, जो जितना मैंने सप्लाईज दिखाया है उतना लाने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है. आप सप्लाईज लाके रखोगे एंड देन यू विल नॉट यूज इट, वो खराब हो जाते हैं, इवन पेंसिल्स भी खराब हो जाते हैं, ठीक है. सो यूज व्हाट यू हैव एंड वर्क ऑन योरसेल्फ एंड योर आर्ट. तो मैं भेजूंगी ग्रुप में भी, आई विल सेंड यू सम पिक्चर्स. सो लेट्स कॉल इट अ डे. सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर. Bye, ma'am. Any Bye, questions? You are looking where somewhere. No, ma'am. So have a great day, and bye bye from Creative and Creativity in association with Kashmir as it is. So check our website www.kashmirasitit.com. You'll get all the details out there. And if you are a good writer, you can send us your written material. We'll publish it. And thank you for joining me here. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Take care. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. 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 Bye bye.